Welcome students. In today's lecture we are taking first of all lead storage cell. Earlier we have discussed about the batteries. There are two types of batteries. Number one, primary, and another is secondary. Primary means whenever any cell is dead, at that time such cells are not recharged or are not rechargeable. So they are known as primary cell, and second is secondary cell. Secondary batteries means such batteries can be recharged. Okay, and this lead storage cell is used. This lead storage cell is used in all types of transport vehicles. Okay, now we are taking the construction. The most important secondary cell is the lead storage cell. Commonly it is used in automobiles and the inverters also. It consists of the lead anode. Pb is taken as an anode and the grid of lead packed or layered with the lead dioxide. PbO2 का लेयर लगाया होता है. ओके, तो अगर इसका कंस्ट्रक्शन हम सिंपली देखें तो देखो ऐसा है. Suppose in a vessel 38% W by W, 38% W by W H2SO4 is taken. Here two electrodes are dipped. Here two electrodes are dipped. Okay. Here Pb which acts as an anode. Second is also of Pb, but it is covered by PbO2. चलो इसके लिए मैंने राउंड सर्कल दे दिया. That is a Pb coated with PbO2. Both are made up of lead. Okay, here Pb acts as an anode and PbO2 layered Pb acts as a cathode. 38% by mass H2SO4 solution is used as an electrolyte. Okay, so here we know that at anode Pb is anode, so Pb reacts with the negative ion of the solution. Solution is of H2SO4, so this SO4 2 minus reacts with the lead. Now the fundamental of it is Pb releases 2 electrons written, and Pb is converted into Pb2 plus, and that Pb2 plus is combined with SO4 2 minus to give the PbSO4. Okay, at cathode we know that PbO2 is layered, उसका coating है ना यहाँ पे. So PbO2 reacts with SO4 2 minus, 4H plus, then 2 electrons, all are combined, and finally we are getting PbSO4. Okay, and then 2H2O. Again PbSO4 and 2H2O. Okay, again PbO2 is converted into PbSO4. So Pb is combined with this SO4 2 minus, and for that चलो यहाँ पे Pb का चार्ज 4 प्लस होगा. देखो इसका डिस्ट्रक्शन ऐसे होगा. PbO2 में Pb का चार्ज 4 प्लस होगा, सो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जी अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब कन्वर्ट होगा Pb2 प्लस में, एंड देन दिस Pb2 प्लस इज कंबाइंड विथ SO4 2 माइनस टू गिव द PbSO4. अब बचा क्या, 2 ऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ओके, तो वो बनाएंगे क्या, 2H2O. सिंपल. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया. देखो 4 प्लस एंड 2 माइनस एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. 4 माइनस एंड 4 प्लस हो गए. ओके, सो दिस इज द कैथोडिक रिएक्शन. अगेन एनोडिक रिएक्शन देख लो, एकदम इजी. Pb सॉलिड गिव्स Pb2 प्लस, गिव्स PbSO4 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड. PbO2 SO4 2 माइनस के साथ कंबाइन होगा, 4H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. वी आर गेटिंग PbSO4 सॉलिड एंड देन 2H2O. दोनों का सम करो तो क्या कैंसल्ड होगा, तो देखो first of all 4H plus and 2SO4 2 minus, it will give 2H2SO4, PbO2 and Pb solid. We are getting 2 PbSO4 and 2H2O.
ओके, दिस इज सेकेंडरी सेल सो इट कैन बी रिचार्ज। चलो रिचार्ज कैसे होगा तो वो आप ध्यान रखो। यहाँ पे देखो ये रिचार्ज होगा ऐसे, बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन। चलो रिवर्सिंग द रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर इसको रिचार्ज करना है तो फिर जहां पे कैथोडिक रिएक्शन हुई थी, मतलब जहां पे रिडक्शन रिएक्शन हुई थी, वहां पे उसको एनोड बना दो। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती थी देख लो, PbO2 SO4 2 माइनस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स PbSO4 2H2O, मतलब कैथोड पे ये दोनों होंगे। तो उसको एनोड बना दो, मतलब उसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दो। किसको? ये कैथोड को, मतलब जो जिससे भी आप एक्सटर्नल कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दो। अब ये तो पता है ना कि वेन एवर लेट स्टोरेज सेल इज इन रिचार्जिंग मोड, जब ये चार्जिंग मोड पे होता है तब एनोड और कैथोड इन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो कैथोड पे जो सीधी होती थी वही रिवर्स होगी, मतलब PbSO4 प्लस 2H2O, इट गिव्स Pb सॉलिड प्लस PbO2, सॉरी शायद गलती हो गई मुझसे, यस सॉरी, वी आर गेटिंग PbO2 SO4 2 माइनस 4H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब कैथोड मीन्स नेगेटिव, तो जो एनोड वाली जो रिएक्शन होती थी ना वो रिवर्स होगी। कौन सी? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb सॉलिड, ओके, प्लस SO4 2 माइनस, सिंपल। ओके, तो फिर अब सेल फिर से एक बार आपने फुल चार्ज कर दिया, फुल्ली चार्ज, तो अब वो फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करने के लिए वो तैयार हो गया। कौन सी? ये Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस। फिर से बैटरी डाउन हो गई तो फिर से, तो ऑटोमोबाइल्स में एक मोड आता है, शायद आपको पता हो, कौन सा? कि जब बैटरी रिचार्ज होती है तब क्या होता है, जब बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं ना तब होगा क्या कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तब वो रिवर्स में होने लगेगी, मतलब जब रिचार्ज करते हैं तब। तो वो कंटिन्यूस फिर से वो रिचार्ज हो जाता है जब हम अपना व्हीकल ऑन करते हैं, आइदर बाइक और एक्टिवा और कार। ओके, तो ये रिएक्शन फिर रिवर्स मोड पे होगी। ओके, PbSO4 सॉलिड ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2। चलो शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, तो पूरी रिएक्शन लिख दी। PbSO4 में से PbO2 बनेगा, तभी तो वो रिवर्स रिएक्शन कर पाएगा ना। सिमिलरली PbSO4 में से फिर वापस यहाँ पे Pb सॉलिड मिल जाएगा। ओके, अब देख लो इसका, यहाँ पे टोटल एक एनोड कैथोड की अगर पेयर होगी ना तो आपको कितने 2 वोल्ट मिलेंगे। इसका सेल पोटेंशियल है 2 वोल्ट। चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। और ड्राई सेल का वोल्टेज वो कितना था? वो था 1.5 वोल्ट। मर्क्यूरी सेल का वोल्टेज तो वो है 135 वोल्ट। और ये लेड स्टोरेज सेल उसका है 2 वोल्ट। तो आपने तो देखा होगा कि हमारे पास जो बैटरी होती है, सपोज एक्टिवा लेते हैं तो उसमें 6 वोल्ट्स की होती है। वो 6 वोल्ट्स कहाँ से लाते हैं? तो 1 एनोड कैथोड की पेयर, इससे आपको 2 वोल्ट मिलेंगे। ओके, देख लो, 1 एनोड कैथोड की पेयर, दूसरे एनोड कैथोड की पेयर अनदर 2 वोल्ट्स, तीसरे एनोड कैथोड की पेयर अनदर 2 वोल्ट्स। तो इससे आपको 6 वोल्ट्स की बैटरी मिलेगी। अगर मुझे 12 वोल्ट्स चाहिए तो एनोड कैथोड की कितनी 6 पेयर्स होगी। ओके, सिमिलरली अगर हमें 24 वोल्ट्स ट्रक्स और जो हैवी ऑटोमोबाइल्स होते हैं HMV, ओके, तो उसमें तो 24 वोल्ट्स की बैटरी यूज होती है। तो कितने 12 एनोड कैथोड के पेयर्स उसमें होंगे। कितने? 12, जिससे आपको 24 वोल्टेज मिलेंगे। ओके, सिंपल रिएक्शन। And the last topic of this chapter, electrochemistry, is the corrosion. Corrosion slowly coats the surfaces of the metallic objects with the oxides or the other salts of the metal.
तो अब ध्यान से देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज नोन एज कोरोजन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की सरफेस और एल्यूमिनियम की सरफेस उसकी जो शाइनिंग है वो डल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस कोरोजन। ग्रीन कोटिंग, ग्रीन स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का कोई भी वेसल अगर आपने अच्छी तरह से साफ किया होगा तो उसके बाद उसकी शाइनिंग ज़्यादा होगी, बट आफ्टर 2 to 3 days, मैक्सिमम 2 days, ओके, तो 2 दिन के बाद उसकी शाइनिंग डल हो जाती है, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन होता है तो वो उसकी सरफेस पे एक लेयर बना देता है, किसका? Al2O3 का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिससे क्या होगा कि उसकी शाइनिंग डल हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस Al2O3 लेयर। बट इट्स अ गुड थिंग, दैट्स वाई एल्यूमिनियम इज एन इनर्ट। लेकिन जब Fe का ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, मतलब Fe का अगर ऑक्सीडेशन होकर जब Fe2+ बनता है तो फिर वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता है कि जनरली हम जो यूज़ करते हैं, क्या, जो भी Fe के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी, तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाए तो फिर वो तो फिर अपने लिए यूजलेस हो जाएगा। मीन्स कोरोजन इज नॉट अ गुड थिंग, बट what is meant by corrosion? So corrosion means the formation of oxide or other salts, okay, on the surface of the metallic objects. It is known as corrosion. okay, तो यहां पे सिर्फ एक सिंपल Fe की रिएक्शन आपको दी है, देख लो। अब होता है क्या, ध्यान से देखो, Fe उसका ऑक्सीडेशन होगा। कोरोजन की वैसे तो रिएक्शन बहुत टिपिकल है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 इक्वेशंस दिए हैं। ओके, उसके तो वैसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और जब आप बैलेंस करने जाओ तो वो बैलेंस ही नहीं होगा। जैसे हम कोई भी एनोडिक कैथोडिक एंड टोटल रिएक्शन बैलेंस करते तो वो हो जाती है ना, यहाँ पे वो बैलेंसिंग नहीं होता है ठीक तरह से। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन दी है कि भाई Fe becomes anode and it gives Fe2+ and 2 electrons. Now my question is, when does Fe become an anode? Fe anode कब बनेगा? तो ध्यान से देखो, कोई भी Fe का हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी ले लिया, Fe का पीस ले लिया, तो जहां पे उसकी एटम की अरेंजमेंट अनयूजुअल हो, देखो यहां पे अनयूजुअल है, यहाँ पे सहज थोड़ा गैप रह गया है, देख लो, या तो फिर कहीं से बैंड हो, या तो फिर कहीं से बैंड हो, या तो किसी पर्टिकुलर जगह पे हमने वेल्डिंग कर दिया है, एडिशनल अरेंज जॉइंट कर दिया है। सो दिस पार्ट हियर, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल एक्ट एज एन एनोड। तो ये वाला पार्ट एनोड बनेगा। अगेन एनोड कौन बनेगा? कि जो पार्ट जहां पे एटम्स की अरेंजमेंट इरेग्युलर हो, जहां पे बैंड हो, जहां पे वेल्डिंग किया हो, जॉइंट किया हो, तो उस पार्ट पे वो पार्ट एनोड जनरली बनता है, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो चलो कौन सा कंडीशन में, जहाँ भी एटम की अरेंजमेंट इरेग्युलर हो, बैंड हो, वेल्डिंग हो, या तो फिर कॉपर की इम्प्योरिटी हो, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ Cu Fe विल एक्ट एज एन एनोड, क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, तो जब कॉपर की इम्प्योरिटी उसमें ऐड हो तभी यही होगा। ओके, तब वो एनोड बनेगा। ओके, नेक्स्ट, तो तब ये वाली रिएक्शन होगी, तो 2Fe विल गिव 2Fe2+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। ओके, तो जनरली कोरोजन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो आपको पता है कि जनरली जब मॉनसून सीजन होता है तभी मैक्सिमम कोरोजन होता है। सो केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट इट मे बी कंसिडर्ड एसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल phenomenon,
and a particular spot of the object made of the iron oxidation takes place. तो वो particular spot क्यों बना, तो वो मैंने समझाया कि जहाँ पे अरेंजमेंट, तो वहाँ पे ये सपोज वाटर ड्रॉपलेट है, ये जो दिया है ना पूरा, ओके और वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन होगी, कौन सी, Fe gives Fe2 plus and 2 electrons. Okay, now electrons released at anodic spot moved throughout the metal and go to another spot on the metal and reduce oxygen in presence of H plus. अब one thing, ये H plus कहाँ से मिलेगा, तो हमें पता है एयर में CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, मॉइस्चर होता है, मैंने अभी बताया मानसून सीजन में हाईएस्ट होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, H2CO3 कार्बनिक एसिड, और कार्बनिक एसिड का डिसोसिएशन होगा जिससे आपको H प्लस मिलेगा, क्योंकि एयर में हमें पता है ऑक्सीजन होता है, H प्लस कहाँ होता है, तो ऐसे आपको H प्लस मिलता है, CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3. सिमिलरली हमें पता है कि जब इंडस्ट्रीज में से जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो एसिड रेन होता है, नाम सुना होगा आपने, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ SO2 वो कन्वर्ट होगा SO3 में, फिर वो मॉइस्चर से कंबाइन होगा और H2SO4 बनाएगा, तो वो भी H प्लस रिलीज करता है. तो हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही होगा, ये फिनोमिनन भी यहाँ पे पार्ट ले रहा है. ओके चलो, तो ये वाली रिएक्शन होगी, देखो कौन सी, O2 gas plus 4H plus 4 electrons gives 2H2O. ओके और फिर ओवरऑल रिएक्शन उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है, Fe is converted into Fe2 plus, O2 and 4H plus are giving 2H2O. So the ferrous ions are further oxidized. अब देखो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से Fe2 plus कन्वर्ट हो रहा है Fe3 plus में, that is ferric ion. Okay, and that ferric ion is combined with oxygen and water to give the Fe2O3 dot XH2O. Why X is written? Because number of water molecules are not fixed, and that is known as rust. इसको हम बोलेंगे rust. Okay, so with further production of the hydrogen ions. That's it. Now we are taking the prevention. So prevention of corrosion is the prime importance, because every year about crores of dollars or rupees are wasted due to this corrosion. It not only saves the money but also helps in the preventing the accidents such as a bridge collapse or failure of a key component due to the corrosion. One of the simplest methods preventing corrosion is to prevent the surface of the metallic object to come in contact with atmosphere. तो वो कैसे पॉसिबल हो, तो फिर उसके ऊपर सिंपल पेंट कर दो. तो हमारे घर पे जो भी मेटल का जो डोर होता है तो फिर उसको हम पता है ना किससे हम पेंट करते हैं, या तो फिर बिसफिनॉल से करते हैं. Another simple method is to cover the surface of the other metals like tin and zinc, तो जिसको हम बोलेंगे galvanizing, पता होगा, sorry, that are inert or react to save the object. An electrochemical method is to provide a sacrificial electrode of another metal like magnesium and zinc etc., and which corrodes itself but saves the object. ओके तो ये जो सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड है ये क्या है, तो जो भी Fe मेटल की जो शीट होती है ना, जो बड़ी वाली शीट, उसका वेट अबाउट 27,000 समथिंग किलोग्राम्स होता है. तो अगर इसको प्रिवेंट करना हो तो फिर क्या करते हैं, इसको मैग्नीशियम और जिंक के साथ, यहाँ पे मैग्नीशियम की शीट और पीछे जिंक या मैग्नीशियम की शीट लगा देते हैं, बीच में ये रखते हैं, क्योंकि इनके प्रेजेंस में Fe कभी एनोड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों देखो Mg और Zn दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है Fe से, बराबर. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड और ज़्यादा वो कैथोड. तो अगर Fe एनोड बने तब जाके रिएक्शन हो ना, तो Fe को अगर हम एनोड ही ना बनने दे तो दैट इज़ द फंडा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो शीट होती है, मैंने बताया ना 27,000 किलोग्राम की आयरन की शीट जब ब्लास्ट फर्नेस में से निकालते हैं और फिर उसको ठंडा पड़ने देते हैं, तो वो जो शीट आती है ना, तो वो शीट को ज़मीन में गाड़ देते हैं. ओके और फिर पहले लेयर लगते
किसका, मैग्नीशियम या तो फिर जिंक का, तो फिर वो शीट रखते हैं और फिर उसके ऊपर और एक शीट रख देते हैं मैग्नीशियम और जिंक की। ओके, एक थिंग पहले वो होगी कि Mg और Zn दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, तो वो शीट चेंज कर दो, नई शीट लगा दो फिर। तो मतलब सेक्रीफिशियल क्यों पता चला, वो अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन Fe का प्रिवेंशन करते हैं फ्रॉम कोरोजन। ओके, तो यहाँ पे देखो अगेन प्रिवेंशन के लिए पहले तो सिंपल पेंट कर दो या तो फिर बिस्फिनॉल का लेयर लगा दो। अनदर मेथड इज Sn और Zn गैल्वेनाइजेशन कर दो, या तो फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके कांटेक्ट में रखो, क्योंकि हमें पता है कि अभी मैंने बताया था ना कि Fe एनोड किस कंडीशन में बनता है, कि अगर कॉपर की इम्प्योरिटी हो, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कॉपर कैथोड बनेगा और Fe एनोड बनेगा, Fe एनोड बन गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक की प्रेजेंस में Fe कभी एनोड बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल ज़्यादा है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सॉरी Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ओके, तो Fe ही कैथोड बनेगा, एनोड बन ही नहीं पाएगा। अब एनोड नहीं बनेगा तो फिर उसकी रिएक्शन नहीं होगी, Fe गिव्स Fe2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो भले ही वाटर मॉलिक्यूल हमें मिले, भले ही हमें H+ मिले, भले ही हमें O2 मिले, लेकिन वो रिएक्शन ही नहीं होगी। ओके, तो ये हुआ कोरोजन का प्रिवेंशन। तो स्टूडेंट्स, चलो इसी के साथ अपना आज की थ्योरी अपनी कंप्लीट हुई।